Hello, students. Good morning. I hope you all are doing good. I welcome you all on the class of the subject Principles of Banking. In the previous class, we have discussed about introduction to banking, functions of banking, difference between banker and banking company, what is the role of bank in economic development, how bank helps in achieving the objective of economic growth, how we can increase the confidence of the public to save the money in the bank, and various other techniques of RBI, that is Reserve Bank of India, we have discussed in the previous chapter. Now, continuing further, today we are starting with the next very important topic, which is related to classification of banks. That what are the commercial banks and how we can classify those commercial banks. इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, कितने भागों में हम उनको बांटते हैं, उसके बाद उनके क्या एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं बैंक्स के, और लोगों को हम कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि वो सेविंग ऑप्शन की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जाएं, लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ की तरफ ज़्यादा हो, ज़्यादा बढ़े, और वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जो है अपना बैंक में जमा कराएं, ताकि बैंक जो है उस मनी को यूज़ करके आगे प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट कर सके. So I would be sharing with you a beautiful presentation on classification of banks. A very good morning to all of you. I hope you all are fine and doing good. As we have covered in the previous chapter about the introduction to banking, role of RBI development of the country. So now we are starting today with a very interesting topic, that is classification of banks. कि कमर्शियल बैंक्स को हम कितनी कैटेगरीज में, कितने क्राइटेरियाज में जो है बांट सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर फंक्शनिंग, डिपेंडिंग अपॉन देयर वर्किंग, डिपेंडिंग अपॉन देयर लोकेशन. So, first is classification according to second schedule. Now, second schedule is covered in Banking Regulation Act 1965, which includes your scheduled banks and non-scheduled banks. Now, what is scheduled bank? Scheduled bank वो बैंक होता है which is registered in the second schedule of the RBI. RBI का जो schedule बना हुआ है उसके अंडर ये बैंक रजिस्टर होता है, और इसकी कुछ conditions होती हैं जो इनको satisfy करनी पड़ती हैं to be included in the second schedule. वो conditions कौन कौन सी हैं? First is कि the banker concerned must be in business of banking in India. कि जो भी बैंकर है वो बैंकिंग बिजनेस में होना चाहिए इन इंडिया. सेकेंड है, अ बैंक मस्ट हैव पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स ऑफ नॉट लेस देन ₹5 lakhs. अब प्रेजेंटली जो आरबीआई है उसने मिनिमम कैपिटल, मिनिमम पूंजी जो है वो 100 करोड़ रुपए की जो है प्रिस्क्राइब की हुई है फॉर स्टार्टिंग अ न्यू कमर्शियल बैंक. तो अगर कोई बैंक है और उसकी पेड अप कैपिटल और रिजर्व्स जो है मिनिमम 100 करोड़ के हैं, देन इट इज कवर्ड इन द शेड्यूल्ड बैंक. थर्ड है कि रिजर्व बैंक के अंडर जितने भी अफेयर्स आते हैं, जितने भी एक्टिविटीज आती हैं, वो सब जो है शेड्यूल्ड बैंक कवर करना चाहिए. इट मीन्स कि इट मस्ट सेटिस्फाई द रिजर्व बैंक दैट इट अफेयर्स are covered under the guidelines of RBI, and it does not include any such activities
which harm the interest of depositors. Okay. Next is, जो ये scheduled banks होते हैं, ये वेरियस क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स के अंडर जो है वो काम करते हैं. इनको जो है मिनिमम बैलेंस जो है अपने अकाउंट में आरबीआई के पास हमेशा रखना पड़ता है, विच इज़ प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ. और scheduled banks are entitled to borrow and rediscount facilities from RBI. Okay, so this was all which was covered in scheduled banks. Now second is non-scheduled banks. Non-scheduled banks वो banks होते हैं जिनका नाम जो है appear नहीं होता. Their name is not covered in the second schedule of RBI. इनको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती जो scheduled बैंक को मिलती हैं, because they are covered under the prescribed conditions of RBI. So this is basically the difference between scheduled bank and non-scheduled bank. Now next is on the basis of ownership. ओनरशिप के हिसाब से भी हम बैंक्स को कैटेगराइज कर सकते हैं 3 भागों में: पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स. ओके, नाउ व्हाट इज पब्लिक सेक्टर बैंक्स? पब्लिक सेक्टर बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट. गवर्नमेंट जो है इन बैंक्स को रन करती है. इंडिया के अंदर 20 बैंक्स ऐसे थे जो नेशनलाइज किए गए थे इन 1969 एंड इन 1980. अब जो ये नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं ये पब्लिक सेक्टर बैंक की कैटेगरी में आते हैं. सो पब्लिक सेक्टर बैंक्स यू कैन से आर दोज बैंक्स विच डोमिनेट कमर्शियल बैंकिंग इन इंडिया. ये जो पब्लिक सेक्टर का कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है ये आजकल बहुत बदल गया है. इट हैज अंडरगॉन अ चेंज. So the government of India now what it is doing, that it does not want to contribute more to the capital of commercial banks. तो अब पब्लिक सेक्टर बैंक्स क्या कर रहे हैं? Therefore पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है वो अपना पैसा जो है, कैपिटल जो है वो रेज करते हैं पब्लिक के थ्रू by making a public issue. So if I take an example, OBC or Oriental Bank of Commerce, and there are various other banks also which are going to make public issue of capital. Okay, we are making the public issue of capital. So OBC was the bank which started with the public issue of capital. Now second is private sector banks. As the name suggests, ये वो banks हैं which are owned and run by private sectors. These banks are owned by individuals or corporations, but they are not owned by any government or cooperative societies. जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स जो हैं वो जब इमर्ज हुए, ये स्टार्ट हुए ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन. When the economic reforms were introduced in 1991, the functioning of your private sector banks started in the economy. Major private sector banks, for example, Bank of Punjab, HDFC Bank, ICICI Bank. So these are the examples which are playing an important role in our economy. Third is cooperative banks. ये cooperative banks जो हैं ये भी हमारी इकोनॉमी का एक बहुत important हिस्सा हैं. They are very important segment of our banking sector. ये वो banks हैं which are jointly run by the group of individuals. हर इंडिविजुअल जो है उसका इस बैंक में इक्वल शेयर होता है और इसके जो अफेयर्स होते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स के वो शेयर होल्डर्स के थ्रू मैनेज किए जाते हैं और जो इनके प्रॉफिट्स होते हैं वो भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं अमंग द शेयर होल्डर्स. सो इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है कोऑपरेटिव बैंक्स का वो ये होता है टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प टू ऑल द मेंबर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स. जितने भी मेंबर्स हैं कोऑपरेटिव बैंक के उनको सबको म्यूचुअली एज अ ग्रुप एज अ टीम जो है वो हेल्प की जाए. ये जो बैंक्स हैं ये स्टार्ट किए गए थे इन 1912 अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट. ओके, उस टाइम क्या था, ये बैंक्स जो थे बनाए गए थे टू प्रोटेक्ट द स्मॉल प्रोड्यूसर्स. जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे स्पेशली आपके पुअर एग्रीकल्चरिस्ट या जो मनी लेंडर्स थे जो फॉल्स प्रैक्टिसेस या माल प्रैक्टिसेस फॉलो करते थे
थेफ्ट करते थे, तो उनकी फंक्शनिंग, उनकी वर्किंग को चेक करने के लिए जो है कोऑपरेटिव बैंक्स को स्टार्ट किया गया। तो अब कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो जो है सरप्लस भी मोबिलाइज कर रहे हैं, अर्बन और रूरल एरियाज में भी वर्क कर रहे हैं, और एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को भी फाइनेंस कर रहे हैं। ये जो आपके कोऑपरेटिव बैंक्स हैं ये 3 टायर सिस्टम फॉलो करते हैं। जैसे इनमें जो आते हैं, पहला है प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटीज। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी में क्या होता है कि इसमें कुछ पर्सन्स की एसोसिएशन बन जाती है। 10 पर्सन्स कम से कम होने चाहिए, इसमें 10 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और हर मेंबर जो है वो अपनी शेयर कैपिटल जो है वो इस सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करता है, और मेंबर्स की जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होती है। एंड ये जो सोसाइटीज़ हैं ये मनी लेंड करती हैं शॉर्ट पीरियड्स के लिए, और बोरोवर जो है वो पर्सनल सिक्योरिटी देता है इसमें टू वन और मोर मेंबर्स। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज योर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ये जो है सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, ये सेकेंड टायर है। ये प्राइमरी सोसाइटीज़ की फेडरेशन के अंडर काम करते हैं। इनका काम क्या है? फाइनेंस करना आपकी प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, उनकी एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करना और उनको गाइड करना। इनकी अपनी कैपिटल होती है और इनके पास पब्लिक के थ्रू डिपॉजिट्स भी होते हैं। दे ऑल्सो गेट लोन फ्रॉम, यू कैन से, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। एंड थर्ड टायर इज योर, एज आई टोल्ड, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स। ये सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स इन अ स्टेट, उसकी फेडरेशन के अंडर आते हैं। ये इनको हम एपेक्स, APEX, एपेक्स बैंक्स भी बोलते हैं। ये जो बैंक्स हैं ये अपने फंड्स जो हैं, डिपॉजिट्स जो हैं, ये पब्लिक से रेज करते हैं, कमर्शियल बैंक से रेज करते हैं, और RBI से भी रेज करते हैं इफ रिक्वायर्ड। These banks, you can say, finance your central cooperative banks. They coordinate their activities and control their working also. These banks carry, you can say, your functions of commercial banking in a very, very efficient manner. So this was all on the basis of ownership. Now next is according to functions. अब functions जो banks perform करते हैं उनके हिसाब से भी हम जो है banks को categorize कर सकते हैं। So पहला है commercial banks. Commercial bank, you can say, is a very, very important constituent of your banking system. ये commercial banks, as I told, are the banks which do banking business to earn profits. ये banks, ये institutions specialize करते हैं financing के लिए। किस चीज़ की financing के लिए? आपके internal trade की financing के लिए, ordinary banking activities को run करने के लिए, deposits receive करने के लिए, loans advance करने के लिए, और bills discount करने के लिए. So we can say that commercial bank is your profit-seeking business firm dealing in money or dealing in your claims to money. It is a sort type of financial institution also, we can say. कमर्शियल बैंक एक ऐसा व्हीकल है जिसके हेल्प से जो है हम डिमांड डिपॉजिट्स को यूज़ कर सकते हैं, और डिमांड डिपॉजिट्स की मदद से हम जो है इकोनॉमी के अंदर मीडियम ऑफ एक्सचेंज को रन कर सकते हैं और पब्लिक के लिए पैसा जो है वो सर्कुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज योर कमर्शियल बैंक्स. सो कमर्शियल बैंक्स आर द इंस्टीट्यूशंस, वी कैन से, दैट मेक short-term loans to the business, and in the process they create the money. Now second is your industrial bank. Now industrial banks वो banks होते हैं जो long term और medium term loans आपकी industries को provide करते हैं उनकी development के लिए. ये industries को help करते हैं in selling their debentures, in selling their bonds, in selling their shares. ये क्या करते हैं कि खुद ही शेयर्स परचेज करते हैं और उसके बाद अंडरराइट भी करते हैं उन शेयर्स को और डिबेंचर्स को. सो इंडस्ट्रियल बैंक्स, वी कैन से, गिव लोन टू द इंडस्ट्रीज फॉर परचेजिंग लैंड, मशीनरी और फॉर अदर पर्पसेस. सो इंडस्ट्रियल बैंक्स आपके जो हैं वो फंड्स भी रेज करते हैं थ्रू लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स, जिनका मैच्योरिटी पीरियड 20 से 25 साल का होता है.
फॉर एग्जाम्पल इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल बैंक्स हैं लाइक IDBI, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IFC, इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन, SFC, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये सारे जो आपकी जो कॉरपोरेशंस हैं, दीज आर स्पेशलाइज्ड इन फाइनेंसिंग ऑफ इंडस्ट्री। और ये जो एडवांस करते हैं लोन्स, ये बहुत लॉन्ग पीरियड के लिए लोन्स देते हैं लोगों को, ताकि वो अपनी इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस की एक्टिविटीज़ को रन कर सकें। थर्ड है आपका एग्रीकल्चरल बैंक्स। एग्रीकल्चरल बैंक्स वो बैंक्स होते हैं विच गिव क्रेडिट टू एग्रीकल्चरल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। ये बैंक्स आपके लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं एग्रीकल्चरिस्ट्स को और फार्मर्स को। जो लॉन्ग टर्म लोन्स हैं वो फार्मर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि वो अपने लैंड को एक्वायर कर सकें, अपने लैंड की वर्किंग को इम्प्रूव कर सकें, और कोई एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स परचेज करनी है तो वो इजीली परचेज कर सकें। और शॉर्ट टर्म लोन्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं फार्मर्स को फॉर परचेजिंग, फॉर एग्जांपल योर सीड्स, फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स या वेजेस पे करने के लिए भी। अब ये बहुत ही जो है वाइडली रिकॉग्नाइज्ड मेथड है फॉर क्रेडिट रिक्वायरमेंट, क्योंकि ये एग्रीकल्चरल की जो है क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करता है। इसमें हमारे बैंक्स आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव बैंक्स, NABARD, NABARD. NABARD is the bank which stands for National Agricultural and Rural Development Bank. एग्रीकल्चरल कॉपरेटिव्स हैं हमारे पास जो आपको फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म के लिए, जिसमें लैंड मॉर्टगेज बैंक्स या लैंड डेवलपमेंट बैंक्स भी होते हैं जो आपका लॉन्ग टर्म क्रेडिट पॉलिसीज को जो है वो डील करते हैं। ये था आपका एग्रीकल्चरल बैंक्स। नाउ नेक्स्ट इज योर एक्सचेंज बैंक्स। एक्सचेंज बैंक्स बेटा वो बैंक्स हैं विच डील इन फॉरेन एक्सचेंज। ये सेपरेट इंस्टीट्यूशंस नहीं होते, ये एक तरह के वो कमर्शियल बैंक्स हैं विच एक्वायर योर ऑथराइजेशन फ्रॉम RBI। ये RBI से ऑथराइजेशन लेते हैं ताकि ये फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकें। द मेन फंक्शन ऑफ एक्सचेंज बैंक्स इज फाइनेंसिंग एंड फैसिलिटेटिंग ऑफ योर फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड मीन्स ये बैंक्स जो हैं फॉरेन करेंसीज को बाय भी करते हैं, फॉरेन करेंसीज को सेल भी करते हैं, और जो टाइटल्स होते हैं फॉरेन करेंसीज के, जैसे इन द फॉर्म ऑफ योर बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ड्राफ्ट, टेलीफोनिक ट्रांसफर्स, ये सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सो वी कैन से दैट एक्सचेंज बैंक प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज लाइक फॉरेन रेमिटेंसेस, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ योर गोल्ड एंड सिल्वर, इशू ऑफ योर लेटर्स ऑफ क्रेडिट, या आपका जो है गाइडेंस प्रोवाइड करनी है किसी को क्लियरेंस के लिए, कोई फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शन हो उसकी क्लियरेंस के लिए आपको गाइडेंस चाहिए, वो भी आपको मिल जाती है। ठीक है, तो ये वी कैन से दैट इंटरनेशनल ट्रेड इज नॉट पॉसिबल विदाउट एक्सचेंज बैंक्स, क्योंकि एक्सचेंज बैंक्स जो इंडिया के अंदर हैं ये हमारे परचेज करते हैं इंडियन एक्सपोर्ट बिल्स को, जो हमारे एक्सपोर्ट बिल्स मैच्योर हो जाते हैं 3 महीने के बाद। ठीक है, उनको हम डॉक्यूमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, उनको परचेज करते हैं और उसके बाद ये फॉरेन जो है उनको परचेज करके फॉरेन सेंटर के अंदर जो है उसको डिस्काउंट करते हैं। उसके बाद जो फंड्स हैं वो वापस इंडिया में भेजे जाते हैं, और अगर किसी को फॉरेन करेंसी चाहिए तो दे ऑल्सो प्रोवाइड द हेल्प इन दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि एक्सचेंज बैंक्स जो है वो फॉरेन करेंसी को जो है RBI को सेल कर देते हैं अब्रॉड में, और उसके बदले दे गेट द रुपीज इन रिटर्न्स। नेक्स्ट इज योर सेविंग्स बैंक। सेविंग बैंक्स कौन से होते हैं? विच कैटर टू द नीड्स ऑफ योर स्मॉल सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी। फॉर एग्जाम्पल लाइक जिन लोगों की सेविंग हैबिट्स होती हैं, ठीक है, वर्किंग क्लास होते हैं, मिडिल क्लास हैं, लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, which have the habit of saving, the people who are habitual to savings. So what they do is they collect your small savings and they open your savings account. ये जो बैंक्स हैं ये सेविंग अकाउंट ओपन करने के बाद जो है लोगों को उसके बदले में पोस्टल सर्टिफिकेट्स इशू करते हैं। पोस्ट ऑफिसेस का फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं, एंड दे प्रोवाइड and fulfill the short-term fund requirement of your general public. Next is yours
इंडिजिनस बैंक्स। इंडिजिनस बैंक्स वो होते हैं which have originated due to your money lenders। पहले क्या होता था, इकोनॉमी के अंदर साहूकार होते थे, साहूकार को हम मनी लेंडर्स बोलते हैं, ठीक है। छोटे ज्वेलर्स होते थे विच यूज टू प्रोवाइड फंड्स टू योर प्रोड्यूसर्स, टू योर फार्मर्स, टू योर एग्रीकल्चरिस्ट फॉर मीटिंग देयर डे टू डे रिक्वायरमेंट्स। So now what has happened that a new form of indigenous banking has originated in the economy. What does these banks do? They grant loans against the securities। जैसे आपने अपनी गोल्ड या अपनी ज्वेलरी या अपनी कोई प्रॉमिसरी नोट, अपनी प्रॉपर्टी आपने मॉर्टगेज कर दी, गिरवी रख दी, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी के बदले में, उस गिरवी रखी प्रॉपर्टी के बदले में आपको जो है वो लोन मिल जाता था एज अ। और वो लोन क्यों मिलता था? क्योंकि आपने अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के फॉर्म में जो है उनको कोई चीज जमा करवाई। तो इसको हम बोलते थे महाजनी सिस्टम। इन ओल्डन टाइम्स दिस सिस्टम वाज कॉल्ड एज महाजनी सिस्टम। सो नाउ what has happened, this system has been replaced by indigenous banking system। Okay, so in indigenous banking what they are doing is they are following more advanced method and more advanced techniques for meeting the requirement of public। Okay, earlier your this Mahajani system was very defective, very outdated, it focused on traditional methods of banking, but now the system has totally changed and they are more confined to the needs of the society। Next is classification on the basis of your organization structure। Now on the basis of organization structure there are various types of banks: unit banking, branch banking, chain banking, group banking and correspondent banking। Now in this one by one we would be studying about all those classifications and we would be discussing their advantages and disadvantages also। Now what is unit banking? Unit banking we can say is a system in which your bank operates in a specified area। You can say that area is generally small or a limited area, and unit bank performs your activities through single office but with limited resources and they are having their no branch offices। So we can say that unit bank is a corporation that operates one office, एक ही ऑफिस को वो ऑपरेट करते हैं, and that is not related to the other banks through either ownership or control। इनके एडवांटेजेस क्या है? फर्स्ट इज एफिशिएंट मैनेजमेंट। एफिशिएंट मैनेजमेंट मींस कि एक ही ऑफिस है, सिंगल ऑफिस है और एक ही मैनेजमेंट के अंडर है, तो जितनी भी वर्किंग होंगी, जितनी भी एक्टिविटीज होंगी वो एफिशिएंटली मैनेज्ड होंगी और कंट्रोल में होंगी, क्योंकि कोई भी मैनेजरियल कॉस्ट या कोई भी एडिशनल खर्चा आपका नहीं होगा। सेकेंड इज बेस्ड ऑन लोकल नीड्स। यूनिट बैंकिंग जो है वो लोकलाइज्ड बैंकिंग है। ओके, ये जो है दे आर वेरी रिस्पॉन्सिव टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी, क्योंकि ये लोगों के क्लोज कॉन्टैक्ट में है, ये पॉपुलेशन की क्लोज कॉन्टैक्ट में है एंड दे सेटिस्फाई द लोकल नीड्स ऑफ द इकोनॉमी। लोकल पॉपुलेशन को जो है वो ज्यादा सेटिस्फाई करते हैं। थर्ड है एलिमिनेशन ऑफ इनएफिशिएंट बैंक्स। इसमें क्या होता है कि जब ये सिंगल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, लोकल नीड्स को जो है फुलफिल कर रहे हैं, तो इनएफिशिएंट बैंकिंग यूनिट का जो कॉन्सेप्ट है जो इकोनॉमी में प्रिवेल करता है वो ऑटोमेटिकली जो है वो एलिमिनेट हो जाता है इनकी वर्किंग के हिसाब से। नेक्स्ट इज चेक ऑन मोनोपोली। मोनोपोली पे चेक क्यों रहता है? क्योंकि यूनिट बैंक्स जो है वो स्मॉल है एंड दे आर लोकल एंड विदाउट एनी पॉसिबिलिटी ऑफ ग्रोइंग इनटू द मोनोपोली। मोनोपोली मीन्स कि कोई एक ही पर्सन है जिसकी पूरी इकोनॉमी के ऊपर ओनरशिप है या कंट्रोल है। लेकिन इस केस में क्या होता है कि इंटरनल चेक रहता है मोनोपोलिस्ट सिस्टम के ऊपर, क्योंकि देयर इज ओनली सिंगल सिस्टम ऑफ बैंकिंग। नेक्स्ट इज नो डिले। इस बैंकिंग में डिसीजन मेकिंग जो है वो लोकल लेवल पर होती है, इसलिए कोई भी चांस, कोई भी एलिमेंट नहीं होता डिले का। कोई भी काम करना है, कोई भी एक्शन करना है, कोई भी डिसीजन लेना है
तो आप इजीली जो है वन गो में ले सकते हो। इसमें इकोनॉमी को जो है वो डेंजर नहीं होता, आपकी बैंकिंग सिस्टम को ये एंडेंजर नहीं करता, एंड मोर ओवर इट क्रिएट्स अ बैलेंस्ड ग्रोथ इन द इकोनॉमी। इट विल नॉट ड्रेन आउट योर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जो आपके विलेजेस हैं या स्मॉल टाउन्स हैं या बिग इंडस्ट्रियल हाउसेज हैं, उनके फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ये ड्रेन नहीं करता। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। पहला है लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि यूनिट बैंक्स जो हैं वो स्मॉल स्केल पर काम करते हैं और इनका लिमिटेड स्कोप है, तो इस करके इसमें डिवीजन ऑफ लेबर और स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती। स्पेशलाइजेशन मीन्स दैट यू आर अलॉटिंग द वर्क टू द पीपल अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज, अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स। बट इसमें एक ही सिस्टम ऑफ बैंकिंग है, तो आप इसमें काम को जो है वो बांट नहीं सकते। दूसरा है हायर रेमिटेंस कॉस्ट। कॉस्ट इसमें जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें बैंक की ब्रांचेस नहीं है। तो जो कॉस्ट है क्रेडिट ट्रांसफर की फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम। थर्ड है जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड रिस्क। इसमें जो है ये लोकल बैंक है, सो इसमें जो है देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्क। तो ये लिमिटेशन कैसे हुआ कि आप यूनिट बैंक को जो है डाइवर्सिफाई नहीं कर सकते रिस्क के टर्म्स में। रिस्क के मामले में जो है ये जो बैंक जो है दे लैक, बिकॉज इनमें रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर आपका बैंक जोग्राफिकली डिफरेंट लोकेशंस में लोकेटेड है तो आपका रिस्क भी जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाता है, रिस्क के चांसेस कम हो जाते हैं। बट इसमें जो है लोकलाइज्ड ऑपरेशंस हैं तो रिस्क के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ बैंकिंग फैसिलिटीज इन स्मॉल टाउन्स। स्मॉल टाउन्स के अंदर जो है ये अपना ऑफिस जो है ओपन नहीं करते, और ये बिग सिटीज में ही इनका एक आधा कोई ऑफिस होता है, जिसकी वजह से जो लोग स्मॉल टाउन्स में या रूरल एरियाज में रहते हैं उन तक ये बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं पहुंच पाती। नेक्स्ट, डिफिकल्टी इन फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस। यूनिट बैंक्स जो हैं वो स्मॉल साइज बैंक्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो ये इनके लिए डिफिकल्ट हो जाता है डिप्रेशन के टाइम में या इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम में इकोनॉमी की स्थिति को फेस करना। एंड लास्ट इज लैक ऑफ ट्रेंड स्टाफ। यूनिट बैंक्स की वर्किंग के लिए हमें जो है ट्रेंड स्टाफ की या स्पेशलाइज्ड स्टाफ की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन इस बैंक में ओनली देयर आर सिंगल टाइप ऑफ ऑपरेशंस, लोकल बैंक है, तो ये लैक करता है कि इस बैंक में जो है एफिशिएंट स्टाफ हो, स्किल्ड स्टाफ हो, जो बैंक की ऑपरेशंस को गाइड कर सके। सो स्टूडेंट्स, दैट वाज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर. In the next lecture we would be covering about other type of categories. Thank you.